तो क्या बदला पिछले बारे से इस बार? What types of physiological changes we have when we reach to the higher altitude? Have you lost weight? Yes, sir. 15 kgs. 15 kg. Yes, sir. Around the Leh and Ladakh region, you heard about the struggle between Indian forces and Chinese forces. ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये क्यों इतना लंबा खींचा जा रहा है? सैम बहादुर की कौन कौन सी बुक पढ़ी है? बायोकेमिकल वेपन्स के बारे में आपके क्या आइडियाज हैं? कहीं ये तो नहीं है कि सोल्जर्स के मन में ये कोई महिला हमें कैसे कमेंट कर सकती है? सर कल्चरली तो अपन उनसे बहुत मच बेटर हैं, क्योंकि अपने तो रानी दुर्गावती और रानी झांसी की रानी ने लीड किया है। मतलब ये वाला पोस्चर गलत होता है, नहीं ये वाला पोस्चर गलत होता है, ये तुम करते नहीं हो। कम सर। कम इन राजवीर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैव अ सीट। ओके राजवीर, सेकेंड इंटरेक्शन है हमारा ये। यस सर। तो क्या बदला पिछले बारे से इस बार? सर नथिंग मच, बट आई एम मोर प्रिपेयर्ड इन दिस। ओके, मोर प्रिपेयर्ड। यस सर। मुझे ब्लेजर भी नया लग रहा है। यस सर, आई यूजुअली चेंज माय ड्रेस कोड इन एवरी टाइम। गुड। एंड हैव यू लॉस्ट वेट? यस सर, 15 kgs. 15 kg. Yes sir. And that is because? Just for the medicals, and just I was preparing for the marathon which will be going to held in Ladakh in the month of June. So I'm So preparing. you'll be participating in that? Yes. Okay. So, please. Rajveer, you mentioned about the cycling. Yes sir. So, you are going to Ladakh for Yes. a marathon. Yes sir. Are you going to plan to participate in a cycle race there? No sir, it is a marathon which just a full marathon, 42.5 kilometers, and I'm going to just participate in the marathon. But during my college years, I went to Ladakh from Delhi to Leh. Okay. So, what types of physiological changes we have when we reach to the higher altitude? So first of all, we see there is a pressure difference which leads to oxygen difference or oxygen carrying capacity in our blood, and which our lungs try to take more oxygen, so they produce more RBC cells and blood get thicker, and this is called as hypoxia, situation of hypoxia, where you feel that there is low oxygen in the environment and you try to gulp more oxygen. So, for that condition, we have a proper word. What you will call it? Adaptation or acclimatization? So acclimatization. Acclimatization. Yes sir. Okay. So, around the Leh and Ladakh region, Yes sir. you heard about the struggle between Indian forces and Chinese forces Yes. in 2020. Yes sir. So, that matter has been resolved or not? So that matter is just disengagement has took place recently. Our external affairs ministers told in the parliament that disengagement is in the place, and we are not letting our guard down, and the policy which we are following is trust but verify. Okay. So, you applied for the CAPF post. Yes sir. So, please tell me about which police force is going to border which area? So BSF borders maximum border starting from Gujarat, Rajasthan, some parts of JNK, then full Bangladesh border, Indo-Myanmar, Indo-Burmese Myanmar border, and some part. Indo-Myanmar border by the BSF? Yes sir, some parts of it. Okay. And then we have also Assam Rifles, which also complements BSF, and in SSB and ITBP especially look our northern border, which is Nepal and China. So in LOC and LSA area, we have a army or police forces? LOC we have I remember there are 2 posts which are held by BSF on LOC, and rest is army. Okay, thank you. Rajveer, what is hypothermia? So hypothermia is a condition when your body temperature suddenly drops and you feel very low. When you are in very extreme climates like subpolar region or sub-negative temperatures. And what are the remedies to get over it? So immediate remedy is to get your clothes dry your clothes, have with warm water, warm yourself, and take measures like exercise, burpees, and jumping jacks,
to get yourself warm from within your body. ओके जैसे कि भी सर ने पूछा आपसे कि लद्दाख में या अलग अलग बॉर्डर्स पे कौन कौन सी पुलिस फोर्सेस या आर्म फोर्सेस गार्ड करती हैं हमारे बॉर्डर्स को, तो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो अरुणाचल में है, लद्दाख में है, सिक्किम में है, इसका एक एनालिसिस आप मुझे बताइए कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये क्यों इतना लंबा खींचा जा रहा है. Sir, it is in a pre-colonial dispute. When the Britishers was in India, they decided a line, that is Johnson's line, that shows Aksai Chin as a part of India. Then they itself drew a line, that is McDonald's line, and they show that it is a part of Tibet, Aksai Chin. So that Chinese took that Johnson's line is our fault line. They take it as a Tibet and India border, but we as Indians, we recognize that Johnson's line, that is Aksai Chin, is India's part. So we have a buffer zone created between India and Tibet and now China. So that is still going on. That is the root cause of it. राजवीर, एसएसपी और बीएसएफ इन दोनों की फंक्शनरी में क्या अंतर है? सशस्त्र सीमा बल. Yes, sir. And BSF. Sir, BSF is the first line of defense, and it was raised in 1965. And SSB is also just a guarding force which looks after for India-Nepal border. ओके. तो नेक्सलाइट प्रॉब्लम है, उसमें सीआरपीएफ इतने टाइम से लगी हुई है. आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे होंगे कि सीआरपीएफ अब तक उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाई जितना होना चाहिए था? सर, सीआरपीएफ काम कर रही है, बट the policy which the Naxalites are using is guerrilla warfare. So they are taking the warfare to the lowest level, like village, block. So it takes time forces to reach there and eliminate that. And we also need to understand that area is eliminated, or not eliminated, excluded from the government welfare schemes. So that part should be also looked after. So that is the main two reasons, that there is extreme inequalities there, and also that they are using that inequality to fund their extremism. अगर आपको एक टास्क ऑप्शन दिया जाए कि गवर्नमेंट और फोर्सेज इन दोनों में से किसी एक के कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है, तो ये फेलोर की कहाँ डालोगे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी? Sir, definitely someone was sleeping at his job, so I'll say that government part. गवर्नमेंट पार्ट. आपने ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री था? Yes, sir. केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, Yes, इन sir. दोनों में से आपका कप ऑफ टी क्या है? So my cup of tea was very different. It was analytical chemistry. ये आपका एमए का है. Yes, sir. But you are asking in BSc graduation, I did from honors, so I have all the subjects. यू हैव ऑल द सब्जेक्ट्स. Yes, sir. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फॉर्मूलाज होते हैं, क्या उनका कोई समझने का भी है तरीका, या रटने से ही सीखा जाता है उन्हें? So that is based on the mathematical formula कि the tetravalency, like carbon have a tetravalency, so it will combine with certain atoms. So that atoms will provide extra valence electrons or to complete that octet. So that formula will derive from that rules. So बेंजीन का क्या रोल होता है? sir, benzene is an organic compound which is used in a lot of industries like perfume, pharmaceuticals, and we can also derive like Kevlar from it, like high strength Kevlar, like polymers, and it acts as a catalysis. What is polymer? Sir, polymer is a compound made up of many monomers, subunits. Monomers is called subunits. When they are combined in a chain or cross-linked chains, they form a thread-like structure at a microscopic level that we can use in different. Any example? Sir, polythene we use is one of the widest example, and that's nylon 66 in the World War used. World War I and World War II we used nylon 66. Rajveer, you heard about the post Chief of Defence Staff. Yes, sir, CDS. So what are the functions and role of Chief of Defence Staff?
So Chief of Defense Staff as after Kargil, there was a Kargil committee report which suggested, and even before there was some George Fernandez report reported that we should make a post like Chief of Defense Staff to integrate our holistic development of the Indian Armed Forces. As we have seen after Gulf and Middle Eastern conflict, that we need combined forces like USA and UK, like a theater command. So we made Andaman and Nicobar as a theater command. So the Chief of Defense Staff looks after that progress, and also he also puts important things like acquisition like Acquisition is in the hand of he just compliments that whatever needs advisory role. Okay. Because it was done by cabinet committee on the security headed by the defense minister and so or Defense Acquisition Council. Defense Acquisition Councils correctly sir. Okay, so basically Chief of Defense Staff का जो रोल हो गया वो हो गया integration of armed forces and advisory role to the government and better management of the forces. management of resources, optimization of everything. Yes, So you also heard about the field marshal. Yes sir. कोई क्या है field marshal post and कुछ बताइए उसके बारे में. Sir, Field Marshal is a 5-star rank, and there are in Army we call it field Marshal, and in Navy we call it Admiral of the Fleet, and in Air Force I'm forgetting the name. I think it Marshal of the Air. Marshal. Okay. So, and we have 3 5-star generals like Karyappa sir, and after Sam Manekshaw sir after 1971, the great, and then in the Air Force we have Sangat Singh sir. I'm so sorry. Ajji. It starts with A, and recently he passed away, and Prime Minister Modi. So you watched that movie? So which, That Sam Bahadur. no sir, I read his books. Okay. Please tell me about the use of technology to tackle all these internal security and external security problems. Do you have anything in mind जहाँ पर टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को ठीक किया हो? So like technology we can use is better surveillance equipments like robots, cameras, motion sensors and thermal imaging like Israel have used in West Bank and the Gaza border, and to monitor that Lebanon peninsula from the Golan Heights. So we can also implement that program in our Myanmar border, because that is the most influential part. Just because there is a drug trafficking, and drugs directly fund anti-national activities. So that part I would recommend that we should follow. Do we have any drones for the surveillance and? Yes sir, we have. We have Heron drone from Israel. Now they are also equipped or armed with Hammer missiles, and we have also MQ-9 Reaper drones which we inducted on lease from USA. 13 number, 10 for Air Force, 10 for Army and 10 for Navy. So any indigenous product we have? Yes sir, we have Rustam 2 and Rustam 1 program going on, and we have one program which is also led by DRDO for the stealth drone also. I'm forgetting the name, but yes we have. That is Ghatak. Yes sir, Ghatak. So what about the Bharat drone? Sir, Bharat Bharat drone. India drone mission I have heard, but Bharat drone. So you talk about the DRDO's Rustam, Ghatak. We also have a Bharat drone that is also made by the DRDO for the line of actual control surveillance. Okay. ठीक है? Okay. Okay, Rajveer, last 3 questions from my side. Yes sir. सैम बहादुर की कौन सी बुक पढ़ी? Sir, Sam Bahadur ki one of the book is by Sangat Singh sir, when he writes about the letters that was exchanged between them. And one book I have read in my library, it was an army magazine in which there were 15-16 pages about it. So his life, how he fought World War, and he got shot 9 times, and then he again emerged as from second lieutenant to lieutenant in Indian Army. Then after lieutenant, his journey to command the Wellington College in Coimbatore, and then to become a chief of army staff. ठीक है. आपकी हॉबीज में आपने एक क्रिकेट भी लिखा है. Yes sir. अभी लास्ट मैच हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, Yes sir. टेस्ट मैच. Yes sir. उसमें लास्ट विकेट की पार्टनरशिप कितने रन्स की थी? So I frankly I didn't watch that match because I was preparing for my marathon. So Okay. Last question, Rajveer.
कुकिंग भी आपकी एक हॉबी है। Yes, sir. इंडियन कल्चर को देखते हुए या इंडियन क्विजीन को देखते हुए कहाँ कहाँ आपको ऐसा देख के लगता है कि यहाँ पे हमारा कल्चरल मिक्स रिफ्लेक्ट होता है क्विजीन्स में? एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। मानिए कि डोसे में हम पाव भाजी मिला के खाते हैं, या फिर चाइनीज़ रेस्टोरेंट में भी हमको कुछ नॉर्थ इंडियन फ्लेवर्स मिल जाते हैं। तो क्योंकि आपका एक कुकिंग हॉबी है, तो मुझे ये बताइए कि इंडियन क्विजीन्स में कहाँ आपको कल्चरल मिक्स देखने के लिए मिलते हैं कि ये कल्चर जो है ये कहीं हमारा साथ नहीं छोड़ता? Yes, sir. One of the example which I can recall is the southern parts of the Banswara district. There is a mixture of Rajasthani cuisine and Gujarati cuisine there. They used to make a dish that dal dhokli. From the flatbread and the dal, they used to mix it and make it as a stew. And as you mentioned in the Chinese part, because authentic Chinese is very hard to find. So that the Chinese cuisine which we generally eat is Indo-Chinese with Indian flavors in it. So one of that part, and Mughlai food is also being influenced by Indian culture also. So like, What is MSG syndrome? I am sorry, I don't know. What is Ajinomoto? Ajinomoto is a form of a salt, sir. What is the chemical name of Ajinomoto? Sir, I'm really sorry, but I'll It's definitely MSG. do. Okay. Thank you. राजवीर, इंडिया में आपकी याददाश्त में कौन कौन से सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं जो भी चल रहे हैं? Sir, separatist movement. Sir, there are many going in northeast part, and नेम देम. sir, like Ulfa group want to separate from Indian state, and also there are also some groups like Hizbul Mujahideen, and one I am not able to recall the name. मुजाहिदीन कहाँ एक्टिव है? Sir, it's in JNK, and they want to separate India and merge into Pakistan or POK, so or make a entirely different state. So one is that, and Naxalite also, they want to overthrow the government from the harmful means. ओके. एंड Uh, पंजाब साइड में? Punjab is, yes sir, Punjab is also the, but we have defeated it, Punjab sir. We have defeated that movement from 80s 90s. So ठीक है. बायोकेमिकल वेपन्स के बारे में आपके क्या आइडियाज हैं, ओपिनियंस? sir, they are banned, as India has also withdrew its funding in 2022 from in this joint statement by our defense minister in parliament, that we are withdrawing our funding for the biochemical and chemical इज weapons. देयर एनी ट्रीटी रिगार्डिंग दिस? Yes sir, there is treaty, and I am forgetting the name. कैन यू एग्जांपल एनी बायोकेमिकल वेपन? Sir, there is a one like isocyanide weapon. The chemical active compound is isocyanide, which was used in Vietnam War also. So it is, what it does, it burns the skin also, and it absorb in the skin and have a mutations in the body, like malfunctioning of the brain, attacks on the central nervous system. एक आप ये बताइए, जो ऑनरी रैंक्स दी जाती है आर्मी में, जैसे कुछ खिलाड़ियों को दी गई है, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, Yes sir. आपको क्या लगता है ये कितना, किस कारण ये दिया जाता है? सर वो कारण, वो तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अपने देश के लिए, तो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री जेस्चर they are being provided with those ranks. So I think that is the most important reason for that. And secondly कि एक मोरल बूस्ट होता है अपने जवानों का, कि हाँ कि कोई ऐसा बंदा है जो आ रहा है उनको, क्योंकि वो उनकी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है कि वो थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ जाती है कई बार काम करते हैं तो लाइक महेंद्र सिंह धोनी, व्हेन ही विजिटेड JNK, ही मेट ऑल द पीपल इन हिज यूनिट एंड मोटिवेटेड देम विद सम जोक्स. दे आल्सो प्लेड क्रिकेट देयर इन लद्दाख. सो आई थिंक ये एक रीज़न होता है ताकि मोटिवेट रहे सब. इसके अलावा सुपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर, बैलिस्टिक मिसाइल होती है कि वो आउटर स्पेस में जाके फिर री एंट्री लेती है, और सुपरसोनिक मतलब सर वो भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल होती है जब वो री एंट्री कर रही होती है,
क्योंकि वो उसकी मैक 5 से ऊपर स्पीड चली जाती है। एक सुपरसोनिक वो के मैक 5 के ऊपर, तो वो एक हाइपरसोनिक ही होती है एक तरीके से। फिर एक सुपरसोनिक होती है जो कि मैक 5 से नीचे होती है और मैक 1 के ऊपर होती है उसकी अभी स्पीड। मिसाइल्स में इंडिया ने कुछ नया किया है? यस सर, वी हैव गॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सर, एग्जैक्टली। कितनी कंट्रीज के पास में फिलहाल? Sir, recently USA have tested, China and Russia we were the third. इंडिया की क्या स्थिति है इसमें? Sir, we are diversifying our nuclear triad with hypersonic missile, and we are also testing high maneuver HVTV, I guess is तो high maneuverable target vehicle. प्रोडक्शन लेवल पे है, टेस्टिंग लेवल पे है? Sir, testing level. First two tests were successful. ठीक है। जैसे सर ने एक क्वेश्चन पूछा था CDS का, Yes sir. आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों के कोऑर्डिनेशन के लिए एक ऑफिसर बैठता है। पैरामिलिट्री फोर्सेज में ऐसी कोई ज़रूरत है या है? सर ज़रूरत तो है इसकी, ओके। और मेरे को आइडिया नहीं है कि है या नहीं है, इसके ऊपर मैं थोड़ा रिसर्च करूँगा। और ज़रूरत बिल्कुल है कि एक कंबाइन मतलब एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्शन कर ले सकती है फोर्स जब चाहे जब। और जब एक ऐसा होता है कि सुपरवाइज करने वाला होता है, एक टू डू लिस्ट चेक करके आपको बता सकता है एज अ लीडर, तो वो एक जो प्रिसाइज एक्शन होगा तो वो अनअकाउंटेड अनइमेजिनेबल होगा अपने एनिमीज के लिए। पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो हायर रैंक्स अफसर होते हैं, यस सर। वो IPS से जाते हैं, यस सर। और एक उनके हायरार्की में जो प्रमोशन से बनते हैं, यस सर। तो आपको लगता है ठीक बात है या इसमें कोई समस्या है? यस सर, समस्या तो है, लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, बोले कि कैडर ऑफिसर्स को ही अलॉटमेंट की जाएगी टिल ADG रैंक, आफ्टर DG विल बी फ्रॉम द IPS कैडर। तो इसके ऊपर मेरा तो ये ओपिनियन है कि क्योंकि एक वो रहेगा कि आप उसी फोर्स में हो तो आप बेटर अंडरस्टैंड करते हो उस फोर्स को, तो यू विल बी एबल टू लीड मच बेटर। विमेन की क्या कंडीशन है इंडियन आर्मी में? Sir, recently Supreme Court also in 2018 and 2020 judgment that they should be granted permanent commission, and they are getting it. Which year? 2020 sir. Okay. And from 23 onwards army started giving them PC permanent commission, and approximately 120 colonels were made and they were given command as a command post. ठीक है, PC में ठीक है। जूनियर लेवल पे? जूनियर लेवल पे सर देयर इज वन फुल battalion, not battalion, one company which is also participating in UN peacekeeping force. सोल्जर लेवल पे रिक्रूटमेंट है? सर आई गेस मेरे को जितना पता है कि है। BSF में तो है। हाँ, आर्मी में है? आर्मी का तो सर थोड़ा आई एम फॉरगेटिंग, तो वो एक गैस हो जाएगा। ओके। आप इससे अवेयर हो कि अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक रिपोर्ट अपनी दी है कि जो कॉम्पिटेंसी है विमेन सोल्जर्स की, उस पर डाउट किया उन्होंने। यस सर। सर वो एक रिपोर्ट दी थी, वो विद इन कमांड एक लेटर एक्सचेंज था फ्रॉम अ लेफ्टिनेंट जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल रैंक्स व्हेन ही वाज लीविंग हिज कमांड एंड गोइंग समवेयर एल्स, तो ही वाज पासिंग ऑन अ लेटर टू हिज नेक्स्ट इन कमांड। सो दैट शोज दैट कि एंड दैट सैम्पल साइज इज़ वेरी स्मॉल, कि उन्होंने 7 या 8 ही कमांड्स को, नॉट कमांड्स, कंपनीज को देखा कि हाँ भाई क्या हो रहा है। तो वो एक सैम्पल साइज छोटा था और उन्होंने 3-4 पॉइंट हाईलाइट किए, बोले कि है ना, एक तो सोल्जर्स वर नॉट हैप्पी with their, and there were a lot of soldiers क्यों happy नहीं? because they were like there were many instances he reported as example that in morning PT जो CO साहब थे वो आते नहीं थे, और हमें जो morning PT होती है फौज के अंदर, तो इसलिए कि she used to command them कि वहीं से घर से कि आप है ना, आप जाइए, भागिए, उसे कंप्लीट करिए, मैं बाद में आऊँगी आपको कंपनी करने, बट एज अ कमांडर यू शुड बी देयर द फर्स्ट पर्सन। ये तो वाजिब कंप्लेन है। सर दैट कहीं ये तो नहीं है कि सोल्जर्स के मन में ये कोई महिला हमें कैसे कमांड कर सकती है? सर ये भी है, एक पैट्रियार्कल नॉर्म भी है इंडियन सोसाइटी के अंदर। जैसे आप US आर्मी में देखते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे से महिलाएं काम कर रही है। यस सर। इंडियन आर्मी में ये नहीं कर पा रही है उस तरीके से, तो क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा कारण है इसके बीच में? सर बिकॉज कि सोल्जर एक वो बंदा है, वो मतलब अपने आप की कैपेबिलिटी जानता है। इंडियन सोल्जर इज़ हार्ड वर्किंग एंड मतलब वो एक्सेप्शनल वर्क कर सकता है लीडिंग टू हिज बॉडी। मतलब आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। यस मैं कहना चाह रहा हूँ कि US में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है कि कोई लेडी हमें कैसे कमांड करेगी, ठीक है, या उनकी जो डील्स वगैरह है उनमें उनको कोई छूट दी जाती हो, उनको कोई सुविधा दी जाती हो,
इंडियन आर्मी में भी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक विचार ये है कि हम किसी महिला के अधीन काम नहीं करना चाहते, या महिलाओं को भी, जैसे आपने कहा कि आप पीटी पे जाइए, मैं बाद में आऊँगी, तो इसके पीछे रूट कोज क्या है? सर रूट कॉज इज सर मेंटालिटी, पेट्रियार्कल मेंटालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग दिया जाता है कि लाइक उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है थोड़ा सा बीइंग अ वुमेन, कि आपको मैटरनल लीव्स वगैरह, तो एक वो थोड़ा सा एक वो फैक्टर भी आ जाता है कि हम नहीं जा पा रहे हैं, आप जा रहे हैं, और एक सॉफ्ट सर्विसेज ही अलॉट हो रही है इसलिए। इसमें आप कल्चरल बैकग्राउंड को नोटिफाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि यूएस का कल्चर क्या है, इंडिया का कल्चर क्या है? वहाँ के कल्चर से निकली एक लड़की सेना में जा रही है, यहाँ के कल्चर से निकली एक लड़की सेना में जा रही है। सर कल्चरली तो अपन उनसे बहुत मच बेटर हैं, क्योंकि अपने तो रानी दुर्गावती और रानी झांसी की रानी ने लीड किया है। एक लास्ट सवाल आपसे, सिविलियन और एक आर्म्ड पर्सनल में बेसिक डिफरेंस क्या देखते हो आप? सर बेसिक अपीयरेंस डिफरेंस और ओनली अपीयरेंस? सब आई एम आस्किंग। अगर वो रिटायर्ड है तो भी यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है? हाँ, हाईली डिसिप्लिन्ड लाइफ। डिसिप्लिन? हाँ, व्हाट इज डिसिप्लिन? सर डिसिप्लिन इज वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, just you do it, no matter what are the obstacles. Is it discipline? Sir, for me discipline is highly subjective. For me, because I'm highly competitive, if I want to do, I always make a to-do list कि I have to do this, and no matter what, I won't sleep till I get the above 90% of doing that my task. Okay, Rajveer, reviews. आज कितना फंबल क्यों कर रहे थे? Sir, I was not prepared. मतलब ड्रेसिंग वेसिंग सब परफेक्ट है आज, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो गया हो। आज कई जगह थोड़ा सा मुझे लगा कि फंबल कर गया है ना जवाब देने में, बाकी ऑल गुड। मतलब एक वो तुम्हारे हैंड पोजीशंस पे मैंने पिछली बार भी तुमको बोला Yes, था sir. कि तुम कंफर्टेबल रहते हो जब तुम हाथ के मूवमेंट्स को करते हो। तुम वो जो स्टक पोजीशन में आ जाते हो ना, तो तुम्हारा आधा कंसंट्रेशन तो उसी पे रहता है कि ये मेरे कि उसको चलाना नहीं है। हाँ उसको चलाना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये वाला पोस्चर गलत होता है, नहीं ये वाला पोस्चर गलत होता है, ये तुम करते नहीं हो। जो थोड़ा बहुत एक्सप्रेशंस के साथ में बातचीत के टाइम पे आपके हैंड मूवमेंट्स होते हैं, दैट इज कम्प्लीटली नेचुरल एंड ओके। इट शोज कि आप अपने इमोशंस उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, इमोशंस के साथ ही बॉडी कनेक्ट कर पाती है। क्योंकि वहाँ जब तक आप अपनी एनर्जी यहाँ इस चीज़ पे लगाए रखोगे कि ये हाथ नहीं हिलना चाहिए, तो आधा तो आपका वहीं कंसंट्रेशन चला गया कि यार इसको चिपका के रखना है, और जैसे ही तुम फ्री हो जाते हो तुम बहुत अच्छा आंसर देते हो। ठीक है ना, बाकी सब ठीक है। हाँ, जोक्स मोटिवेशन नहीं होता है, महेंद्र सिंह धोनी वाला। जोक्स मोटिवेशन नहीं है, जोक्स आपको लाइटन अप करते हैं। इट्स अ लाइजर, इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। मोटिवेशन जोक्स, ये जैसे तुमने बोला कि महेंद्र सिंह धोनी ने जाके सबसे इंटरेक्ट किया, उनके साथ में जोक्स वोक्स मारे, सबको मोटिवेट किया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। जोक्स मोस्टली आपको लाइटन अप करते हैं, इट इज़ द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आपका कहीं ना कहीं लाइजर टाइम का पार्ट होता है। और बाल क्यों बढ़ा रखे? सर मुझे लास्ट नाइट ही पता चला था कि आई हैव एंट्री शेड्यूल। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से बस इतना ही। बाकी सब सही चल रहा है, गॉड्स ग्रेस, बाकी सब सही रहा तो सिलेक्शन है इजी। हेलो राजवीर, यस सर। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस गुड, फ्लुएंसी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ प्रॉब्लम्स जो मुझे देखने को मिली वो मैं बताता हूँ आपको। वेन एवर यू आर यूजिंग टेक्निकल वर्ड, उनको या तो यूज मत करिए या फिर गलत मत यूज़ कीजिए। जैसे कि जब आपसे बातचीत हो रही थी वियतनाम वॉर के बारे में, दैट एजेंट वॉज एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज, बट सर एक्टिव कंपाउंड वाज एक्टिव कंपाउंड इज साइनाइड, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। फिर आपने बहुत जल्दी हबड़तबड़ कर दिया कि वो हर्बिसाइड है, उसने जो गुरिल्ला वॉरफेयर था। यार ये तो मेजर इवेंट है इंडियन, मतलब पूरे ऑल ओवर द ग्लोब की हिस्ट्री के। वियतनाम वॉर, गुरिल्ला वॉरफेयर एंड यूज ऑफ एजेंट ऑरेंज। उसकी वजह से क्या हुआ, किस तरीके से लीव सेटर्ड हो गई, पूरे के पूरे जो ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट थे वो नेकेड हो गए, ठीक है ना। तो गुरिल्ला वॉरफेयर तो वो से बताइए अच्छे से। दूसरा जो प्रॉब्लम आई वो आई मिसाइल्स की। जब बात हुई आपने सब कुछ मिक्स कर दिया, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। व्हाट इज मैक नंबर, ठीक है, क्योंकि आपके इंटरव्यू में हो सकता है कि मिसाइल्स और इनका क्वेश्चन आ जाए,
Yes, sir. ठीक है ना? तो यू शुड नो अबाउट दी व्हाट इज सबसोनिक स्पीड, सोनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड एंड हाइपरसोनिक स्पीड। अलोंग विद इट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जब आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा था कि व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल एंड व्हाट इज क्रूज मिसाइल, दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रेजेक्ट्री। Yes, sir. स्पीड तो अगर मैं बैलिस्टिक की बात करूं तो बैलिस्टिक तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आएगा तो हमेशा हाइपरसोनिक होगी, Yes, sir. ठीक है ना? बट जो क्रूज होती है जो बिल्कुल हॉरिजेंटल चल रही होती है, वो वहाँ throughout पर the speed- journey- हाँ, थ्रू आउट द जर्नी हॉरिजेंटल रहती Yes, है, sir. वहाँ पर आपको स्पीड की वजह से क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। और जब पूछा जा रहा है आपसे हाइपरसोनिक वगैरह, तो देखिए ये बहुत बड़ा मेजर इवेंट है। अभी रिसेंटली इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया, ओनली 4 कंट्रीज है, Yes, तो यू शुड नो अबाउट इट। अभी तक उस मिसाइल का जो नाम वगैरह है उसको नहीं डिस्क्लोज किया गया, बट यस वी हैव अ वेरी गुड सुपरसोनिक मिसाइल दैट इज ब्रह्मोस। तो प्रॉपर एग्जांपल दीजिए, बैलिस्टिक में अग्नि का यूज कीजिए, क्रूज के अंदर ब्रह्मोस का यूज कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दी हाइपरसोनिक ब्रह्मोस सेकंड मिसाइल, Yes, sir. ठीक है? अब ब्रह्मोस की अगर कभी बात होगी तो थोड़ा सा जो डील्स वगैरह ब्रह्मोस के साथ चल रहे हैं उन्हें देख के जाना, ठीक? अगला जो पॉइंट है, आप इंसर्जेंसी की बात हो रही थी, आप वहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप्स का भी नाम ले रहे थे, टेररिस्ट, तो थोड़ा सा याद रखना कि सेपरेटिस्ट क्या होते हैं, इंसर्जेंट क्या होते हैं, मिलिटेंट क्या होते हैं और टेररिस्ट क्या होते हैं। हर एक का जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है ना, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। किसी को अपना स्टेट अलग करना है, अपनी कंट्री बनानी है, किसी को केवल प्रॉब्लम क्रिएट करनी है वहाँ पे, किसी को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पे करनी है, उसे वायलेंस क्रिएट करना है। तो थोड़ा बहुत इसके आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा तो जब भी कई कई जगह पे बस थोड़ा सा ही दिख रहा था कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जा रही थी और रॉन्ग वर्ड यूज हो रहा है। मैं ये खास करके बता रहा हूँ टेक्निकल चीज़ों में, क्योंकि जहाँ बोलना चाहिए हाइपरसोनिक वहाँ सुपरसोनिक बोल दे रहे हो, ठीक है? तो बस इन सभी से बचना है अपने को, ठीक है? ऑल द बेस्ट। आगे सर ने सारा बता दिया। Yes, sir. अच्छा एक चीज़, इनका एक बार फीमेल कोई मेंबर हो उनके साथ में तो बहुत ज़्यादा फिर भी 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो मैंने पहले पिछले इंटरव्यू में आपको टोका था संगत सिंह नहीं सगत सिंह, Yes, sir. आपने अगेन संगत सिंह कहा, हाँ? दूसरा, जो आप जिसको आप डिसिप्लिन डिफाइन कर रहे हो वो अगर नेगेटिव है तो एडमेंसी, पॉजिटिव है तो फिर वो डेडिकेशन है, डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन की अलग परिभाषा होती है, वो एक टूल होता है डेकोरम मेंटेन करने का, ठीक है? डेडिकेशन अलग चीज़ है, डिसिप्लिन अलग चीज़ है। एक पिछले इंटरव्यू के अंदर जैसे सर ने कहा था कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, उससे मुझे याद आया, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा सांप है जिसको अक्सर कॉमन करेक्ट से मिस आइडेंटिफाई किया जाता है, Yes, sir. और आपने क्या नाम लिया था वहाँ पे? Sir, rat snake. रेड स्नेक, Yes, sir. ठीक है? दैट इज वुल्फ स्नेक। Wolf snake. हाँ, रेड स्नेक में तो उसमें बहुत अंतर है, कतई उसको मिस आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है? हाँ, सांप से मिस आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन कॉमन करेक्ट से मिस आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है राजवीर, और मॉक्स हम इन कमिंग वीक्स हम कहीं ना कहीं एक मॉक्स और लेंगे। तो आपका कॉल कब है इंटरव्यू का? Sir, it will be scheduled after May, in between May and June. बहुत टाइम, ठीक है, अपने पास में विल गो थ्रू दीज इंटरव्यूज मॉक्स धीरे धीरे, बट यू आर डूइंग गुड, जो आपने प्रिपेयर कर रखा है यू आर डूइंग गुड। सर लाइक जैसे सब्जेक्ट वाले पार्ट में भी मैं थोड़ा सा वो हुआ था, तो उसके ऊपर मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ मेरा सब्जेक्ट, तो बट इट इज़ वेरी वास्ट, तो हाउ लॉन्ग शुड आई, नहीं जो करंट साइंस एंड टॉपिक्स हैं जो केमिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं वो सम बेसिक्स जैसे केमिकल वेपन्स को पढ़ लिया, मिसाइल्स वगैरह वो देख लिया। देखिए आपका जो मेन वर्क है वो क्या है, सिक्योरिटी को मैनेज करना, तो वो साइंस का पार्ट पढ़ा जिसका सिक्योरिटी के अंदर डायरेक्ट यूज होने वाला है। और एक आपका कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे जो हो रहा है वो पता होना चाहिए आपको। नक्सलिज्म के बारे में तो पता ही होना चाहिए। Yes, sir. नॉर्थ ईस्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अभी जो मणिपुर के अंदर क्राइसिस Yes, sir. चल रहा है, तो वहाँ पे वो कौन से ग्रुप्स हैं जिनके Yes, बीच में है, तो वो प्रॉपर Okay, sir. अब उल्फा वगैरह तो अभी छुप गए, गायब भी हो गए। और उन्होंने तो वो ट्रीटी कर ली गवर्नमेंट के साथ। तो आप जब आपने नाम लिया ना इंसर्जेंट का, तो आपको नाम उनका लेना था जो अभी नागालैंड के अंदर है। Yes, sir. ठीक है, असम वाले तो जा चुके हैं, तो वो सारे नाम प्रॉपर उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। अरुणाचल में क्या है, नागालैंड 7 ही तो है ना, Yes, sir. याद हो जाएगी 2-3 बार में, फिर उनको यूज कीजिए। और करंट इवेंट्स के साथ किस तरीके से इंडियन आर्मी के ऊपर हमला किया उन्होंने म्यांमार बॉर्डर के पास, उस तरीके के पॉइंट्स को डालिए। नॉर्थ ईस्ट पे फोकस कीजिए, छत्तीसगढ़ बस्तर वाला रीजन है उस पर क्या चल रहा है, पंजाब में जो खलिस्तान मूवमेंट है इस पर क्वेश्चन आ सकता है, Yes, ठीक है, उसके बारे में रखना है। और कश्मीर का तो पता ही है, उसको तो ज्यादातर पूछने की जो पॉसिबिलिटी है वो इधर से होगी, पंजाब या उस साइड से। और गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट के बीच में, वो yes, वाला sir. थोड़ा देखना, ठीक है। ओके राजवीर, इस टॉपिक को अच्छे से देखना।
Yes, sir. बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस पे क्वेश्चन पूछे जाने की। Yes, sir. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Have a good day, sir. Thank you.